Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that our online classes and video classes have started in the new session, and I have started warm-up exercise that is given in your maths textbook. And so far we have completed till question number 19. Total 21 questions are there in the warm-up section, and we have completed till 19. I hope you have seen the previous videos. To complete your work, classwork, you have to watch the videos. आपको वीडियो देखकर अपना क्लासवर्क कंप्लीट करना है इन योर फेयर कॉपी. जो आपकी क्लासवर्क कॉपी है उसमें आप जो भी काम करेंगे वो आप वीडियोस देख कर करेंगे, क्योंकि इसमें हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे. इवन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा वो भी करवाएंगे, वेदर इट इज़ इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और हिंदी, जीके, कंप्यूटर, विच एवर सब्जेक्ट इट इज़. All the work will be done in the video classes. Explanation will be done in online classes. Explanation will be done in video classes, as well as written work will be given in video classes. So do watch videos regularly to complete your task too. Otherwise आपका जो काम है वो छूट जाएगा. तो वीडियो क्लासेस देखिए, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उसको समझिए, और जहाँ पे रिटन वर्क है वो रिटन वर्क आपको करना होगा by watching videos. Children, let's start the video and let's start today's exercise. But before that, let me tell you whatever we have completed. आप अगर अपनी book खोलेंगे, I hope you all have purchased the book also. Now books are also available. So page number 9 we have completed, that is fill in the missing numbers. And the second question is count and fill in the placeholders, which is related to ones, tens number and their number names. Then we have completed page 10 also, that is question number 3, write in expanded form, and question 4, write in short form. Both these questions we have completed in video class. Then question number 5, write the numbers that comes before. Question number 6, write the numbers that comes after. Question number 7, write the numbers between given numbers. Question number 8, write the numbers in increasing order. All these questions are given on page number 10, and I have explained these questions also and solved them on the board. ये पूरा solve मैं कर चुकी हूँ पिछले वीडियो में. Do watch the video and complete your work. Then coming to question number page number 11. Question number 9, write the numbers in decreasing order. That is also done. Circle the smallest number. That is question number 10. It is also done. Question number 11 is circle the greatest number, and question number 12 is put greater than and smaller than symbol. This also I have, all these questions also I have explained and I have done in the video classes. Do watch the videos and complete. Then question 13 and 14, which is add on number lines and subtract on number lines respectively. ये जो है ना 13 है वो addition on number line है, और 14 है subtraction on number line, and both I have explained. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देके मैंने समझाया है. सो आप जो बुक का है आप उसी को कंप्लीट कीजिएगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. कंप्लीट इट इन योर एक्सरसाइज कॉपी. जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है उसमें आप इसे करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द सम विच इज रिलेटेड टू एडिशन. Sums are given for addition. I have done each and every sum on the board. You can watch that and you can copy from there, or you can do it yourself. After understanding, you can do it yourself. I would suggest you to do it yourself. आप एक बार समझ लीजिए, वो वीडियो देख के समझ लीजिए कैसे करना है, और फिर खुद से कीजिए, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है. फिर क्वेश्चन नंबर 16 है find the differences, which is related to subtraction or minus. This also I have explained in the previous videos, and each and every question each and every sum is explained and done in the video class.
You can watch the video, you can understand that and try to do it yourself. अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज try to do it yourself. Then question number 17 and 18 is like a statement question, थोड़ा statement question जैसा है. That also I have explained and solved for you during the video class. You can go through that also. And now coming to question number 19, that is related to repeated addition and multiplication. That also I have explained in the previous video, और मैंने solve भी किया और explain भी किया है. तो do watch it, एक बार आप देख लीजिए और उसको खुद से करने का ही आप कोशिश करेंगे. Try to do it yourself. ठीक है. अब हम पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग ऑन द बोर्ड अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा. कुछ एक्स्ट्रा भी आपको समझा दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे. हम ये वार्म अप कर रहे हैं एक्सरसाइज दैट आई हैव repeatedly said during my video class, that this warm up exercises are actually revision of what you studied in class 1. आपने क्लास 1 में जो भी पढ़ा है उसका ये एक रिपीटेशन है, उसका एक रिकैपिचुलेशन है. आपको एक बार याद दिलवाया जा रहा है कि ओ ये सब चीज़ें आपने क्लास 1 में पढ़ा था. ठीक है, ये याद दिलाने के लिए है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक के एक्सरसाइज में जो आप पहले नहीं कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवाया जा रहा है. तो मैं जान रही हूँ कि आप वो खुद से सारा कुछ कर सकते हैं, बट टेक हेल्प ऑफ वीडियो टू अंडरस्टैंड, टू गेट इट रिवाइज्ड. एक बार आपका रिविजन हो जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे. डू योर वर्क नीटली, एकदम साफ सुथरा करना है. कॉपी में बॉक्स में प्रॉपरली लिखना है. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेकेंड वीडियो हाउ टू राइट इन द बॉक्स प्रॉपरली. मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था बॉक्स के बीच में आप कैसे लिखेंगे. अगर सिंगल डिजिट है, अगर 2 डिजिट नंबर है तो कैसे लिखेंगे, एंड इफ इट इज़ मोर देन 2 डिजिट, हालांकि अभी तक ऐसा कोई नंबर आया नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर्स आपको कैसे लिखना है प्रॉपरली बॉक्स में. आपकी मैथ्स की कॉपी में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली आपकी कॉपी है, उसमें आप नीटली लेजिबल राइटिंग में लिखेंगे सो दैट करेक्शन कैन बी डन, कुड बी डन प्रॉपरली. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन पे हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 इज मल्टीप्लाई. लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट. Question 20. Multiply. And this you must have done in class 1, that I am sure, because tables आप सीखते हो, UKG से ही आप tables सीखते हो, multiplication table सीखते हो, तो वो बिल्कुल उसी से related है. You must have studied that in your रिपीटिंगली से यूकेजी में भी पढ़ा है और आपने 1 में भी पढ़ा है. इसको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा. ठीक, चलिए हम करते हैं. हमारा है 4 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर उसके बाद है 8 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ चिल्ड्रन, अभी मैं एक करके ही आपको समझाऊंगी. दिस सिंबल जो क्रॉस का साइन होता है, इसको हम कौन सा सिंबल बोलते हैं? वी कॉल इट मल्टीप्लाई सिंबल. ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. आप अभी आगे की चैप्टर्स में देखोगे, इस तरह के जो क्रॉस का साइन होता है इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई इस जहाँ पे ये होगा इसका मतलब आप यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड दिस इज सिंबल ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको इस साइन को पहचान लिया आपने, है ना. एक प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई. ये साइन आपको पता है ऐड करने के लिए होता है. दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 साइंस जो आपको पहचानने हैं. एक और साइन है जिसको हम कहते हैं डिवाइड. तो ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, इसलिए इसके बारे में अभी मैं नहीं बोल रही हूँ.
लेट मी इरेज दिस। चलिए, तो आपने टेबल्स पढ़ा है ना, 2 का, 3 का, 4 का एंड टिल 10 आई होप आपको आता होगा। स्टिल हम 5 तक तो मानते ही हैं कि सबको आता है ना, 5 तक टेबल सबको आता है, 1 में सब ने पढ़ा होता है। ये मल्टीप्लिकेशन जो ये है, ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ही हैं, जिसको यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। 4 2s आर, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 4 2s आर, मतलब 4 क्या है, 2s हैं, 4 क्या है, 2s हैं। 2 कितनी बार है, 4 बार है। 1 2 3 and 4, 4 2s are 4 times 2, 4 times 2 मल्टीप्लाई। ये साइन का मतलब होता है उतनी बार रिपीटेशन, ठीक है। ये साइन का मतलब होता है उतने टाइम्स, उतने बार। तो 4 times 2, 4 times 2, 4 times 2, 2 कितनी बार, 4 बार। 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। तो 2 + 2 इज 4। उस 4 में अब 2 और प्लस कर दीजिए, 5 6, फिर उस 6 में 2 और प्लस कर दीजिए, 7 8। कितना आया, 8। तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे, 4 2s are 8, 4 2s are 8। जा नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जा नहीं होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जा नहीं होता है। ये क्या होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are, क्या बोलते हैं उसको, 2 3s are, 2 3s मतलब 3 कितनी बार, 2 बार, 2 3s 2 1 and 2 कितने हैं, ये 1 है, ये 2 है ना। 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 + 3 is 6, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 2 3s are 6। अगर हम बोलते हैं 2 4s are, इसका मतलब क्या है, 2 4s are मतलब 2 क्या है, 2 टाइम्स क्या है, 4 है, 2 4s हैं। कितने 4s हैं, 2 4s, 4s कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 2 4s, कितने 4s, 2 1 2, 4 + 4 8, 2 4s are 8, ठीक है। ये जब आप टेबल बोलते हो तो इसको ध्यान रखना, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, मतलब 2 times 5, 2 times 6, 2 times 7, 2 बार 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार 6 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर अभी हमने किया 4 2s are 8। यहाँ पे लिखा है, देखिए 8 3s are 8 3s, 3s कितनी बार है, 8 बार है, 8 3s, 8 क्या है, 3s है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, मतलब 3 को आप 8 बार प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 3s, ठीक है। 8 3s, 3s कितनी बार है, 8 बार है। तो 3 को 8 बार प्लस करने पे कितना आएगा, तो इतनी बार प्लस नहीं करेंगे, हम कहेंगे 8 3s are 24, क्योंकि हमको टेबल याद है। अगर आपको 8 का टेबल नहीं आता है तो क्या करेंगे, 3 का कर लीजिए, 3 8s are भी सेम होता है,
ठीक है, जितना 8 3s आर होगा उतना ही 3 8s आर होगा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। मतलब ये होता है कि रिपीटेड एडिशन होता है कि आपको बार बार ऐड करके आंसर निकालना होता है, और मल्टीप्लाई करने से हमारा फटाफट हो जाता है। तो 8 3s आर 24। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसको मिटा देती हूँ मैं यहाँ पे। फिर है 5 4s आर, 5 4s। 4 कितनी बार है? 5 टाइम है। मतलब जो आगे नंबर होता है उसका मतलब होता है उतनी बार। 5 4s, कितनी 4s? 5। ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 4 एंड 5। 5 4s, 5 4s आर 20। यस, 5 4s आर 20। Next is 7 7s are 7 7s। 7 कितनी बार? 7 टाइम्स। 7 7s मतलब 7 टाइम्स 7। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 बार 7। ठीक है, 7 टाइम्स 7। 7 7s are 49। यस, 7 7s are 49। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता है या अगर आपको 8 का टेबल नहीं आता है तो आप रिपीटेड एडिशन करके आंसर आप पता कर सकते हो। बार बार ऐड करके भी आप आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, आपको बार बार मतलब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बट यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर ज़रूर मिलेगा लेकिन आपको फिर टाइम लेकिन ज़्यादा लगेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 6 5s आर, 6 5s। 5 कितनी बार है? 6 बार है। 6 5s हैं। कितने 5s हैं? 6 6 5s। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 5s। तो 6 5s आर कितने होते हैं? अगर आपको 6 का टेबल नहीं आता है, 6 5s आर कितने होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको ऐड करेंगे। 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। 10 + 5 कितना होता है? 15 होता है। 15 + 5 कितना होता है? 20 होता है। 20 + 5 इज 25। 25 + 5 इज 30। बहुत टाइम लगेगा, और 6 5s are 30 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई से क्या होता है? हमारा काम फटाफट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 2s आर, 6 2s मतलब 2 कितनी बार है? 6 बार है। 6 2s है। 2s कितने हैं? 2s कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इन सबको ऐड करने पे जितना आएगा वही आएगा 6 2s। 6 2s are 12। 6 2s are 12। 2 + 2 is 4। 4 + 2 is 6। 6 + 2 is 8। 8 + 2 is 10 and 10 + 2 is 12। हो गया, 6 2s are 12। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। है हमारा 3 9s are, 3 9s are। 3 टाइम क्या है? 9 है। 3 9s है। कितने 9s है? 3 9s है। ठीक है, 9 + 9 + 9, 9 + 9 + 9 मतलब आपको 3 टाइम्स 9 को प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये टेबल ही पढ़ लेते हैं। 3 9s are 27, है ना? कितना टाइम लगेगा 9 + 9 + 9 करने में? तो अगर टेबल याद है तो फटाफट हो जाएगा। 3 9s are 27। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट 10 10s are, 10 10s are। 10 टाइम्स 10
मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी बार 10 टाइम्स। तो 10 टेंस आर ऐसे आपको याद ही है सबको, मुझे लगता है कि 10 का आपको टेबल तो याद है ना। 10 टेंस आर 100, 10 टेंस आर 100, ठीक है। टेन टेंस आर 100 तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद है ना। 5 और 10 एक ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को याद रहता है। 5 का टेबल और 10 का, है ना, सबसे इजी टेबल होता है। इनफैक्ट 2, 5 एंड 10 ये 3 टेबल्स ऐसे हैं जो सब बच्चों को लगभग याद ही रहते हैं। 10 टेंस आर 100, 10 बार 10 प्लस करने से अच्छा है कि हमको याद ही रहेगा 10 टेंस आर 100, ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इसमें मुझे एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए हो कि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू टेबल्स। जो आप टेबल्स में करते हो ये इट इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी इरेज कर दें क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डू एज डायरेक्टेड। चिल्ड्रन आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ताकि आप जब बुक देखो तो आप पहचान सको कि अच्छा यही वाला क्वेश्चन है, और आपको मीनिंग भी बता रही हूँ क्वेश्चन का। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा कहा जा रहा है वैसा कर। डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला जा रहा है वैसा करिए। अब कैसा बोला जा रहा है ये देखना है, क्या बोला जा रहा है। आप अपनी बुक में देखेंगे बिकॉज आई कैनॉट ड्रॉ ऑल दीज एनिमल्स, सम एनिमल्स आर देयर, पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स आर देयर। फर्स्ट वन इज जिराफ, देन मंकी का पिक्चर है। आई होप आप पहचान रहे हो। टॉल सा है ना, लंबी सी गर्दन में जो एनिमल है वो कौन सा है, इट इज जिराफ। फिर उसके बगल में एक ब्रांच पे लटक रहा है एनिमल, यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज दैट एनिमल क्योंकि आपके वाराणसी में वो बहुत ज़्यादा है। कौन सा है वो, मंकी, यस मंकी है। फिर मंकी के नेक्स्ट जो एक एनिमल है वो क्या है, उसके पेट में पाउच है। कौन से एनिमल के पेट में पाउच होता है, ऐसा बैग जैसा बना होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है। कैंगरू, यस, हिंदी में कंगारू बोलते हैं, इंग्लिश में कैंगरू बोलते हैं, तो वो है कैंगरू। फिर उसके बगल में एक एनिमल है बड़ा सा, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, इट इज़ एलिफेंट, यस एलिफेंट है। और फिर उसके बगल में भी एक बड़ा सा एनिमल ही है एंड दैट इज़ बेयर। बियर नहीं बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड बेयर। क्या बोलते हैं, बेयर। तो हमारे 5 एनिमल्स हैं, जिराफ, मंकी, कैंगरू, एलिफेंट एंड बेयर। ये 5 एनिमल्स के पिक्चर हैं। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया है क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर सकती इन एनिमल्स को। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है ना डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा जा रहा है वैसा करने को कहा गया है। तो पहला है नेम द एनिमल। क्या करना है आपको, पहले मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ। नेम दी एनिमल, आपने देखा होगा कि ये ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेम दी एनिमल। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो। नेम द एनिमल, ठीक है, ऐसा लिखा है ना, नेम द एनिमल। बुक में देखिए लिखा है, हाँ। अब क्या लिखा है, उसके नीचे लिखा है हु, WHO, हु, IS इज थर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 और RD, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, हु इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट हाथ जिससे आप खाना नहीं खाते,
ज़्यादातर लोग राइट हैंड से ही खाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट से खाते हैं। जनरली अगर हम ऐसे खड़ी हूँ, मैं, मेरी बुक ऐसे खुली है, तो दिस इज़ माई लेफ्ट, दिस इज़ माई राइट। पर अगर मैं ऐसे हो जाती हूँ तो दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट। तो आप मेरे को फेस करके नहीं पहचानोगे। यू विल टेक योर बुक और आप अपनी बुक का लेफ्ट देखोगे, ठीक है। यू हैव टू सी द लेफ्ट ऑफ योर बुक। हम ऐसे बुक पकड़ते हैं, है ना। अब मैंने ये ऐसे बुक पकड़ा है, दिस इज़ माई लेफ्ट, तो आई विल चेक फ्रॉम लेफ्ट, इधर से, इस तरफ से मैं देखूंगी हु इज़ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से थर्ड एनिमल कौन सा है? 1 2 3। हु इज़ थर्ड? कैंगरू। यस, आप देख रहे होंगे, फर्स्ट नहीं छोड़ना है, सेकंड भी नहीं देखना है, थर्ड एनिमल को पहचानना है। एंड थर्ड एनिमल कौन सा है? कैंगरू है। यू विल राइट answer is kangaroo, Kangaroo, kangaroo. Then who is second from the right? अब राइट से देखेंगे, राइट साइड से, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट से सेकेंड, फर्स्ट छोड़ के सेकेंड। अब ये वाला हाथ, लिखने वाला जो मेरा हाथ है, आप भी जब बुक ऐसे पकड़ोगे तो आप यहाँ पे लेफ्ट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। तो राइट से फर्स्ट छोड़ के सेकेंड कौन सा है? एलिफेंट। वेरी गुड। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ये 1 था, ये 2 था। हु इज सेकेंड फ्रॉम द राइट? और आंसर क्या है? एलिफेंट। यस। अब देखो, चेक करो, एलिफेंट ही है ना। लिखने वाला हाथ आपने ऐसे बुक पकड़ी, आप अपनी बुक को ऐसे पकड़ो, होल्ड योर बुक इन योर हैंड, दिस इज योर राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड। तो राइट से सेकंड कौन सा है? एलिफेंट है। होल्डिंग योर हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड, थर्ड कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड पिक्चर इज ऑफ कैंगरू, ठीक है। तो कैंगरू और एलिफेंट दोनों अगल बगल है, यहाँ से सेकंड और यहाँ से थर्ड है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं इरेज कर दूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। The monkey is dash from the left. अब देखिए, फिर से लेफ्ट, बुक ऐसे हाथ में पकड़ना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड ये है, यहाँ से देखिए, जब आप इस तरफ से आप मूव करेंगे तो मंकी का क्या प्लेस है? फर्स्ट है जिराफ, सेकंड क्या है? मंकी। यस, तो लेफ्ट से मंकी का प्लेस है सेकंड, ठीक है। द monkey is second from the left. monkey का क्या है प्लेस? इट इज सेकेंड। ऐसे है ना। फिर से देखिए, आपने बुक पकड़ी, पिक्चर्स हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड है, फर्स्ट जिराफ है, सेकेंड मंकी है। तो मंकी का पोजीशन क्या हुआ? सेकेंड हुआ। द बेयर इज डैश फ्रॉम द राइट। अब बुक ऐसे ही है हमारे हाथ में, राइट हैंड उठाइए और देखिए कि इस तरफ से जब आप मूव करेंगे, इस हाथ की तरफ से आप मूव करेंगे तो बेयर का क्या पोजीशन है? यहाँ से जैसे ही मूव करेंगे, बेयर का पोजीशन क्या है? देखिए बुक में क्या है। यहाँ से जब आपने मूव किया इस तरफ से, राइट हैंड साइड से आप मूव कीजिए इधर की तरफ, राइट से मूव करेंगे इधर की तरफ, तो बेयर कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट। यस, द बेयर इज फर्स्ट
from the right. Got it? The bear is first from the right. ऐसे आप राइट हैंड उठाइए और इस तरफ को मूव कीजिए तो सब बेयर आप देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो मंकी इज सेकेंड एंड बेयर इज फर्स्ट. Monkey is second from left and bear is first from right. And with this we come to the end of this warm up exercise. हमारा warm up exercise भी खत्म हो गया और हमारा वीडियो भी ओवर हो गया. ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए. टोटल 21 क्वेश्चंस थे. We have completed all the 21 questions. Do this in your copy. आप इसको कॉपी में फेयर कॉपी में कीजिए and someday I will ask copy for correction. Okay, we'll meet in the next video. Thank you.